This is fourth part of the video on topic indifference curve analysis. In the first three videos, indifference curve, origin, definition, indifference schedule, curve, marginal rate of substitution, assumptions, and properties of IC are discussed. In this fourth part, we will study price line or budget line. According to Hibdon, this is single B. James Edward Hibdon is an American economist and educator. According to Hibdon, the price line shows all the different combinations of two goods that a consumer can purchase given his money income and prices of two goods. तो जो प्राइस लाइन हमें बताती है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम के साथ मैक्सिमम कितनी यूनिट्स ले सकता है कमोडिटीज की. That is shown by the budget, or when we draw this budget on the graph, that is known as budget line. This is budget equation. Px qx plus py qy equals to m. Diagrammatically, we represent only two goods, one on one axis, other on other axis. So we have taken two goods here in the equation, but we can expand this equation for a number of goods. जितनी भी गुड्स के ऊपर कंज्यूमर ने अपनी इनकम स्पेंड की वो सारी गुड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं. इन केस ऑफ टू गुड्स, अगर दो गुड्स हैं तो एक गुड की कितनी क्वांटिटी ली और पर यूनिट की क्या प्राइस है, दूसरी गुड की कितने यूनिट्स ली और पर यूनिट की क्या प्राइस है, ये बन जाएगी कंज्यूमर की टोटल मनी इनकम. तो इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे बजट लाइन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, टेबल, डायग्राम, तो ये और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी इक्वेशन. बजट लाइन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम. So this is the table and diagram to explain budget line. Let me draw this table and diagram again for better understanding. Now suppose in the beginning consumer has ₹5 as money income. He has money income M, ₹5, that he spends on two goods X and Y. कंज्यूमर के पास ₹5 हैं जिनको वो दो गुड्स X and Y के ऊपर स्पेंड करता है. प्राइस ऑफ X इज ₹1 per unit and price of Y is also ₹1 per unit. जो X है वो है ₹1 की एक और जो Y है वो भी है ₹1 की एक. तो अगर हम दोनों गुड्स के ऊपर ये मनी स्पेंड करें तो मैक्सिमम कितनी यूनिट्स हम X की ले सकते हैं, कितनी यूनिट्स Y की ले सकते हैं. These are the combinations that consumer can purchase of two goods X and Y. Suppose first combination is B combination. अगर कंज्यूमर सारी इनकम Y के ऊपर खर्च करे, X वो ले 0, अगर सारी इनकम Y के ऊपर खर्च कर दे तो मैक्सिमम कंज्यूमर कैन बाय 5 यूनिट्स ऑफ Y. This is B combination 0, X, 5, Y. Or consumer can buy 1X, 4Y, or 2X, 3Y, or 3X, 2Y,
और 4x 1y और L कॉम्बिनेशन 5x 0y। तो जो हमारी कंडीशन है कि कंज्यूमर के पास हैं 5 रुपीज़, 2 गुड्स के ऊपर वो खर्च कर रहा है x एंड y। तो अगर वो अपनी इनकम को, सारी इनकम को स्पेंड करे इन 2 गुड्स के ऊपर, तो BCDEFL 6 कॉम्बिनेशन है। इन 6 कॉम्बिनेशंस में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन कंज्यूमर परचेज कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो 6 कॉम्बिनेशन परचेज करेगा तो उसकी जो सारी इनकम है वो ख़त्म हो जाएगी इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो बाय करे तो इसी को हम बजट इक्वेशन के साथ भी अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे लिखते हैं बजट इक्वेशन को। हमारी जो बजट इक्वेशन है दैट इज PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इक्वल्स टू M। हम कोई भी कॉम्बिनेशन देखें, सपोज D कॉम्बिनेशन देखें, तो D कॉम्बिनेशन के ऊपर जो X की प्राइस है 1 इंटू क्वांटिटीज X की हैं 2 प्लस जो Y की प्राइस है 1 एंड क्वांटिटी है जो Y की क्वांटिटी है 3। दिस इज इक्वल्स टू 5 बिकॉज आवर इनकम इज 5। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। दिस इज द budget equation. Now, if we draw this table on the diagram, then we will get budget line. For example, one side here we are taking one commodity, other side other commodity. We have at most 5 units of X, 1 2 3 4 5, and 5 units of Y, 1 2 3 4 5. This is the graph paper. By drawing each combination on the diagram, 0x 5y, this is B point, 1x 4y, C point, 2x 3y, D point, 3x 2y, this is E point, 4x 1y, this is F point, and 5x 0y, this is L point. Now by joining these points we get budget line. This is the budget line. What is the meaning of this budget line? The budget line shows that consumer can purchase any of these 6 combinations in this example with the help of given income and given prices. तो इस बजट लाइन के हिसाब से कंज्यूमर अगर इस बजट लाइन के ऊपर है, इस बजट लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है जैसे BCDEFL, कोई भी जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम। कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा है। कोई भी पॉइंट जो इस बजट लाइन के अंदर है, सपोज अगर हम लगाएं ये G पॉइंट है, ये G पॉइंट जो है इस बजट लाइन के अंदर है। This G point is in the budget space. This area
अंडर बजट लाइन जितना भी एरिया है इसको कहते हैं बजट स्पेस। और ये है बजट लाइन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम बजट लाइन की बात करते हैं, ऑन द बजट लाइन कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, बट इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, द कंज्यूमर इज नॉट स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास 2 x हैं 2 y हैं, तो 2 रुपये x के ऊपर लगे, 2 रुपये y के ऊपर लगे, क्योंकि 1 रुपये की एक x है, 1 रुपये की एक y है, तो कंज्यूमर के 4 रुपीज़ लगे, 1 रुपया उसके पास बच गया। इट मीन्स कंज्यूमर ने 5 रुपीज़ सारे स्पेंड नहीं किए, उसने 4 रुपीज़ स्पेंड किए। तो बजट स्पेस का यही मीनिंग है, कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च नहीं करता, और बजट लाइन का मीनिंग है कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा है। और अगर हम इसके बाहर की बात करें, आउटसाइड दिस बजट लाइन, सपोज दिस पॉइंट, सपोज दिस इज H पॉइंट, तो ये पॉइंट ऐसा है जो कंज्यूमर नहीं ले सकता विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द 2 गुड्स, क्योंकि इस पॉइंट को लेने के लिए कंज्यूमर के पास चाहिए 6 रुपीज़, 4x 2y, 4 रुपये यहाँ x पे लगेंगे, 2 रुपये y पे लगेंगे, तो कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, ये कंज्यूमर की पहुंच से बाहर है। इसकी प्राइस के हिसाब से, इसकी इनकम के हिसाब से कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता। दिस इज द बजट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन जो है वो कैसे शिफ्ट होती है, बजट लाइन में शिफ्टिंग कैसे आती है? We know budget line depends upon consumers' money income, price of X and price of Y, क्योंकि जो हमने बजट लाइन बनाई वो 3 चीज़ों के बेस पे बनाई, M, PX एंड PY। इसका मतलब जो बजट लाइन है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही इन तीनों में से किसी भी एक में कोई चेंज आएगी, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। तो इन तीनों को हम अलग अलग पॉइंट बनाकर स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन M। तो जब हम M की बात कर रहे हैं उस टाइम PX एंड PY को हम कांस्टेंट मान लेते हैं 1 1। जो M है वो सपोज इंक्रीज हो गई 5 to 7। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। तो बाकी अदर थिंग्स मीन्स PX एंड PY अगर सेम हो, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, ही कैन परचेज मोर यूनिट्स ऑफ द गुड्स। तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स की ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकता है। एज ए रिजल्ट बजट लाइन शिफ्ट्स राइट वर्ड्स पैरेलल टू इनिशियल बजट लाइन। तो बजट लाइन जो है वो पहली बजट लाइन के पैरेलल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया। तो पहले जो बजट लाइन है वो 5 के हिसाब से है, यहाँ पे अगर इनकम 5 हो तो 5 5 बना के हमने जैसे अभी बनाई। तो अगर हम यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम 7 कर दें तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन होएगी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये 5 के हिसाब से बनाई है, और अगर हम इनकम को 7 कर दें सपोज, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो नए बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर 0 एंड 7 ले पाएगा, 1 6 हो जाएगा। अगर मैं दोबारा लिखूं तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 7, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0, ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे।
और जब हम इनको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे सेम डायग्राम में, तो 5 6 7 लगाएंगे, यहाँ पर भी हम इसको 6 7 लगाएंगे, तो ये 7 7 की कॉम्बिनेशन बन जाएगी। जैसे पहले 5 5 की बनी थी, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2, 1 के साथ 6 के साथ 1, 1 के 7 के साथ 0। तो बजट लाइन जो होगी वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। एंड ऐसे ही अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो बजट लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अगर इनकम 7 से 5 हो जाए तो ये बजट लाइन पैरेलल लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड इज द शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। अगर एक्स की प्राइस चेंज हो तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी? तो पहली जो बजट लाइन है वो 5 5 के हिसाब से बनी हुई है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अब यहाँ पे जो अदर थिंग्स हैं वो हैं एम एंड पी वाई। ये वही हमने मान लिया, एम 5 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ वाई ₹1। तो अब 5 रुपीज़ हैं कंज्यूमर के पास, 1 रुपये की एक वाई है, तो कंज्यूमर मैक्सिमम 5 वाई ही ले सकता है, इससे ज़्यादा वाई वो नहीं ले सकता। इसलिए वाई की साइड पे जो पॉइंट है 5। एक्स में क्या है, एक्स में वो पहले 5 ले सकता था जब इसकी 1 रुपया प्राइस थी। अब इसकी 50 पैसे प्राइस है तो ये अब 10 यूनिट ले सकता है विद 5 रुपीज़। तो एक्स वाली साइड हमने इसको 10 तक ले गए हम। तो ये पॉइंट पहले 5 से 5 था, अब ये 5 से 10 तक आ गया। तो इसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। एज अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एज द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, जैसे ही एक्स की प्राइस कम हुई कंज्यूमर कैन परचेज मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। कंज्यूमर एक्स की ज़्यादा यूनिट ले सकता है। एज अ रिजल्ट बजट लाइन शिफ्ट्स काउंटर क्लॉकवाइज। तो बजट लाइन यहाँ पे थी पहले, तो फिर वो यहाँ पे हो गई। मतलब जैसे क्लॉक ऐसे ऐसे करके चलता है, तो ये हम इधर से इधर को चले गए, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए, जैसे हमने प्राइस कम की, अगर पहले बजट लाइन ये हो, एक्स की प्राइस बढ़ जाए, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी क्लॉकवाइज। सेम इज द केस शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अगर हम वाई के केस में देखें तो इसमें हम अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एम एंड पी एक्स ये है सेम। तो अगर y की प्राइस कम हो जाए तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 एक्स के केस में ये 5 ही रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़ हैं, एक रुपये की एक्स एक आती है, तो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। तो जब y की प्राइस 1 थी तो ये पहले बजट लाइन ये थी BL, तो y की प्राइस अब हो गई 0.5 पैसे, 0.5 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब कंज्यूमर y ले सकता है 10 यूनिट्स। तो ये पहले 5 5 पे था, अब ये बन गया 5 10 पे। तो बजट लाइन पहले ये थी, अब ये बन गई। इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज शिफ्टिंग। तो बजट लाइन जो है वो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गई। और अगर प्राइस y की बढ़ जाए, पहले बजट लाइन सपोज ये हो, प्राइस बढ़ गई तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो वो बन जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द शिफ्ट इन बजट लाइन। Now another point related to the budget line is slope of the budget line. This is px over py. This is the budget line. Budget line is negatively sloped as shown in this diagram. Left to right ये downward sloping है। तो हमारे केस में अगर हम downward sloping लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस नेगेटिव स्लोप px over py. So this is minus 1/1 because price is 1 in this example. So price of slope of the budget line is -1 here in this particular diagram. This was all about the budget line. For consumer equilibrium,
derivation of demand curve, comparison between utility and indifference curve analysis, and importance of indifference curve, criticism of indifference curve, must watch next parts of the video. Thank you.